So the topic we were discussing was subspace. Eh? What is subspace? Yes, sir. क्या था? What was subspace? बताइए. What is subspace? Yes, sir. A non-empty set S will be a subspace of V vector space if it follows the two conditions, vector addition and the scalar multiplication. Means a subset of V which should be non-empty, है ना? So it is a subspace if S is itself a vector space. ये था under the same operation of V. That problem. Yes. Under the same operation of V. Okay. This was your subspace. तो हमने वो एग्जाम्पल डिस्कस किए थे. Your line over R2 is a subspace if you have your V2, then any line passing through origin. This is always a subspace of V2. And then we discussed, I think, one condition also, one theorem. One theorem was there. What? S is a subspace of V if and only if two conditions are there. What were the condition? If U V belongs to S, then alpha U plus beta V also belongs to S for all U V in S and alpha beta scalars. And B, alpha U belongs to S for all U in S, alpha in R. है ना? If these two conditions are there, then any subset is a vector space, provided it is non-empty. So these conditions in combined, if UV belongs to this and this, है ना? This condition को मैं combine करके A, B को one condition भी लिख सकता हूँ. If I will combine A and B, so I can say that यहाँ पे U plus B था, sorry. So by combining A and B, we can combine A and B and can say that a non-empty subset S of V is a vector space if and only if alpha U plus beta V belongs to S for all UV in S, alpha beta in R, है ना? इन दोनों A और B को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या it will not become this condition? बताइए. It has scalar product and vector addition. जब स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो it will again a vector. This is again some vector. और फिर इनको ऐड कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या चीज इंक्लूड होगा? एक तरीके से कंडीशन A is including here and B also. Clear? So this Yes. करनी है. हाँ, तो A और B को I can replace by this also. यहाँ से आप A B निकाल सकते हैं. If I take alpha 1 beta 1, so you will be getting U plus B belongs to S, है ना? Alpha 1 beta 0, so you will be getting alpha U belongs to S. So in general, you can write this also. This was basically your problem number 1, page number 72. ये प्रॉब्लम थी. ये प्रॉब्लम सेट है आपका 3.2. प्रॉब्लम सेट 3.2. So I can combine and I can say this also. Similarly,
Second problem, let page 73. Let W is a set defined x1, x2, xn belongs to Vn such that x1 is always 0. ना, एक W ऐसा सेट है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज 0. Then prove that W is a subspace of Vn. प्रूफ करना है, बताइए हाउ टू प्रूफ. प्रॉब्लम इज क्लियर. W is a subset of Vn. W is a subset of Vn. आपको शो करना सब स्पेस. कैसे करें बताओ भाई. Anyone? टू कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखाएंगे. अभी 2 को मैंने कंबाइन भी तो कर दिया. या तो 2 करके देख लें आप, या कंबाइन देख लें, है ना. 2 भी कर सकते हैं. वैसे तो आपको दिख रहा है कि अगर x1 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर यू कैन सी दैट ओरिजिन विल बी लाइंग हियर. अगर यहाँ कंडीशन में लगा देते x1 नॉट 0 तो हम डायरेक्ट, तो उसमें प्रूफ का क्वेश्चन नहीं होता. अगर तो नॉट 0 लगाते तो डायरेक्ट देता है W इज नॉट अ सब स्पेस बिकॉज W इज नॉट अ वेक्टर स्पेस. क्योंकि अगर x1 नॉट 0 है तो क्या नहीं आएगा इसके अंदर, 0 वेक्टर आइडेंटिटी. यस, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं आएगी, है ना. लेकिन x1 0 है तो इसका मतलब ये, अब x1 0 का मतलब ये नहीं है कि ये सब भी 0 ले सकता हूँ. ये तो फ्री वेरिएबल से सिर्फ एक एलिमेंट में कंडीशन लगा दी है, यानी कि ये रेस्ट्रिक्टेड है. बाकी सब फ्री वेरिएबल्स है, इन सबको मैं 0 भी ले सकता हूँ, है ना. तो आप शो कर सकते हैं 2 कंडीशन दिखा के, कंबाइन दिखा. अगर आप 2 दिखाएंगे, देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे. लेट u v बिलोंग्स टू W. तो अगर u v बिलोंग्स टू W होगा तो u क्या होगा, आपके पास कोई वेक्टर हो जाएगा सपोज x1, x2, xn सच दैट x1 इज 0. तो इसको 0 ही लिख लो. एक काम करो, जब x1 0 ही है तो v क्या हो जाएगा 0, y1, y2, yn and so on. So what about u plus v? 0 plus 0 कंपोनेंट वाइज एडिशन करेंगे तो 0, x2 plus y2, ये y2 है, ये y3 एंड so on, x2 plus y2 एंड so on, xn plus yn. तो ये आपका क्या w में जाएगा, इट विल बी इन w, यस, है ना, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इज Yes. 0. और सिमिलरली व्हाट अबाउट अल्फा u? अल्फा u, अल्फा इंटू 0 तो 0, अल्फा x2, अल्फा xn, ये भी आपका W में चला गया. So that means W is a subspace. Okay. Fourth problem. It will more clear your concept. Which of the following sets are subspaces of V3? ठीक है, मैं कुछ सेट्स लिख रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कौन सा सब स्पेस है कौन सा नहीं है. x1, x2, x3 such that x1, x2 is equal to 0. b x1, x2, x3 such that x2 upon x1 is equal to square root 2. c x1, x2, x3 such that root 2 x1 is equal to root 3 x2. d x1, x2, x3 such that x3 is an integer. x3 is an integer. Integer मतलब z ने बिलोंग करेगा. Set of integers को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं. You know this thing. And e
x1 x2 x3, ये अगर आपने प्रॉब्लम सारी कर ली तो इसका मतलब कि यू जस्ट गॉट द कंसेप्ट, यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट इज लेस देन इक्वल टू 1. f x1 x2 x3 is such that x1 plus x2 plus x3 greater than equal to 0. G x1 x2 x3 such that x1 is equal to root 2 x2 and x3 is equal to 3 x2. H x1 x2 x3 such that x1 is equal to 2 x2 or x3 is equal to 3 x2. And last I such that x1 minus 2 x2 is equal to x3 minus 3 x2 by 2. ठीक है भाई, ये इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसेट्स बनाए. देखिए सबसेट्स तो हैं सारे ये V3 के ट्रिपलेट्स हैं. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस. सब स्पेस का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर स्पेस, ये आपको यहाँ पर बताना है. प्रॉब्लम तो क्लियर है या किसी को प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, ये बता दिए पहले. बोलिए. प्रॉब्लम समझ में नहीं आई किसी के शायद है? नहीं से प्रॉब्लम समझ में आई है. चलो अब बताइए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. तो बताओ जरा. हाँ प्रॉब्लम सेट है ये आपका, ठीक है. बोलिए. ये रे सबस्पेस होगा. फर्स्ट वन होगा सर. है यस सर, ए होगा. प्रोडक्ट जीरो है आपका, x1 x2 x3 जीरो है ना. तो अगर x1 x2 जीरो है तो इसका मतलब इसके अंदर आई कैन टेक व्हाट 0 x2 0 और x3 0. हाँ, तो यहाँ पर मैं x1 x2 दोनों को भी जीरो ले सकता हूँ. 3.2 का सी आया, ठीक है. और यस सर. चलो वेरी गुड. तो सब स्पेस है यहाँ पे क्योंकि x3 इज अ फ्री वेरिएबल, यहाँ पर मैं जीरो ले सकता हूँ. ठीक है. और कोई प्रॉपर्टी तो ऐसी नहीं है जो यहाँ पर नहीं फिल हो रही है, देख लीजिए एक बार देख लीजिए. ऐसे आपको सेट बनाना है कि उनमें प्रोडक्ट जीरो हो हमेशा. देख लो एक बार यार, सिर्फ जीरो आने से गारंटी कोई हो गई. चलो ठीक है, जीरो तो आपका आ रहा है, लेकिन मैंने कहा था हमें सब चीजें देखनी है. चलो मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, चलो आपकी बात मानता हूँ. मैंने ले लिया 1 0 0. ये बताइए अगर ए को मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, बी को बी से, तो क्या ये ए में बिलोंग कर रहा है इस सेट में? पहले इसकी बात कर रहा है. यस. और ये 0 1 0, यस सर, ये भी. जरा इसका एडिशन करना, जरा ऐड करो जरा, क्या आ रहा है? 1 1 0. 1 1 के बारे में क्या रहा है? नॉट बिलोंग्स. नहीं. तो फिर आपने जल्दी जवाब दे दिया. मैथमेटिक्स में और खासकर वेक्टर स्पेस, रियल अलजेब्रा, प्योर मैथमेटिक्स में थिंक ट्वाइस, और अगर प्योर मैथमेटिक्स में है तो थिंक 10 टाइम्स कम से कम. ठीक है, जो दिख रहा है वो एकदम डायरेक्ट नहीं होता है. तो आइडेंटिटी तो दिख रही थी आपको, बिल्कुल सही बात थी, लेकिन आइडेंटिटी सही कोई है? आइडेंटिटी तो आपके सेट ऑफ इंटीजर्स में भी होती है, मैंने बताया जीरो होता है उसमें. ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी डिस्कार्ड हो गई. और आपने प्रूव भी कराया कि टू प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, u प्लस वी एंड अल्फा u, है ना. यस सर. तो उससे आप डिस्कार्ड कर सकते हैं. आइडेंटिटी से कहीं अगर आइडेंटिटी से नहीं आ रहा होता तो आपकी बात सही होती,
ठीक है, अगर आइडेंटिटी से आ रहा है तो हम ब्लाइंडली नहीं कह सकते। मैंने आपको एग्जांपल दिए, सेट ऑफ इंटीजर्स इसका एग्जांपल 0 होता है इसके अंदर, है ना। तो अगर आइडेंटिटी नहीं आ रही है तो डेफिनेटली नॉट अ सब स्पेस। लेकिन अगर आइडेंटिटी आ रही है तो स्टिल वी हैव टू टेक केयर। चलो, तो ये नहीं है। चलो बी की बात करते हैं आप। ये अगर आपने सारे समझ लिए तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बी के बारे में बताइए, क्या राय है आपकी? ये तो सब स्पेस नहीं है, नॉट अ सब स्पेस। not such. बी बताओ जल्दी से, कुछ आइडिया लग रहा है? कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं आप इफ यू वांट टू सॉल्व मैथमेटिक्स। इसके लिए यू नीड एडिटिव आइडेंटिटी। नहीं आइडेंटिटी, क्यों? व्हाई एडिटिव आइडेंटिटी नॉट देयर? किसने कहा ये बात? रेशियो फाइनाइट। जुनैद? रेशियो फाइनाइट। हाँ, बताओ जुनैद, बोलिए जुनैद। सर रेशियो फाइनाइट है। हाँ, बिल्कुल सही, आपकी बात सही है। देखो, जब भी कोई चीज अगर फ्रैक्शन में दी होती है तो उसमें ये अंडरस्टूड होता है कि डेनोमिनेटर शुड बी नॉट 0, है ना। ये फ्रैक्शन में लिखा है, Yes. देखो। अब आप सोचेंगे थर्ड में भी ये एक चीज लिखी हुई x2 अपॉन x1 इज इक्वल टू √2 जो गिवन है आपको, और एक लिखा हुआ है x2 इज इक्वल टू √2 x1। ये देखने में एक लग रही है लेकिन ये एक नहीं है। यहाँ पर जब भी ऐसा लिखा होगा तो वो अंडरस्टूड होगा x1 नॉट 0, जब भी फ्रैक्शन में कोई चीज होती है ना। Yes, sir. जब x1 नॉट 0 होता है तब आप ये चीज करते हैं, ये इसके इक्वल हमेशा नहीं होती। क्यों? ये आप रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, डिनोमिनेटर इज नॉट 0, ओनली देन यू कैन राइट x2 इज इक्वल टू √2 x1, क्योंकि अगर x1 0 होगा तब ये आपका इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड बन जाएगा, है ना। तो ये दोनों अगर आप देखेंगे दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि इसमें भी मैं इधर x2 ले जाऊं √3/√2 लिख दो ना, लेकिन दे आर डिफरेंट। जब इस चीज में यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ अंडरस्टूड है, क्या अंडरस्टूड है यहाँ पर? x1 कैन नॉट बी 0 हियर, है ना। x1 इज नॉट 0। No. तो अगर x1 नॉट 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी मिसिंग, है ना। यू कैन नॉट हैव 0 0 0, so b is not a, so 0 0 0 additive identity does not belong to b, so it is not a subspace। तो ये भी नहीं है, ये तो है ही नहीं। क्लियर है? Yes, sir. यस Yes. सर। गुड। इसकी बात करते हैं। चलो यहाँ पर बताइए। अब यहाँ मैंने बताया ना, यहाँ फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ लीनियर टर्म इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं x1 को भी 0 ले सकता हूँ, और X2 जब को- x1 0 लोगे तो x2 तो अल्टीमेटली 0 ही आएगा, है ना। और Yes, sir. x3 इज अ फ्री वेरिएबल। x3 अगर कंडीशन में नहीं है तो x3 इज अ फ्री वेरिएबल, आई हैव एनी चॉइस ऑफ x3, तो x3 भी 0 हो सकता है। तो इसका अलावा यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करेगी, बट एज आई टोल्ड यू कि अगर एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो हम आगे में नहीं बोल देंगे कि सब स्पेस होगा। अभी हमने एक एग्जांपल देखा है ना। तो वी हैव टू चेक कि वेदर इट इज फॉलोइंग u प्लस v और नॉट। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आप 2 वेक्टर्स लेंगे, मान लीजिए u v x1 x2 x3, और v आई एम टेकिंग y1 y2 y2, Y2. है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेस्ट्रिक्शन क्या होगी, √2 x1 इज इक्वल टू √3 x2 Roots. एंड √2 y1 इज इक्वल Y. टू √3 y2। अब इसका Y2. सम अगर यही फॉलो कर रहा है तो ठीक है। तो u प्लस v में आपके पास मालूम है कंपोनेंट वाइज एडिशन होता है। अब हम देखते हैं √2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो √2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ये किसके इक्वल आना Itself as चाहिए? well. √3 टाइम्स ऑफ सेकंड Root एलिमेंट के। तो देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 Root x1 3. ये लिख सकते हैं। √2 x1 की Yes. वैल्यू क्या है? √3 x2 विच इज व्हाट, √3 टाइम्स x2 प्लस y। तो आगे कंडीशन हो रही है √2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ सेकंड एलिमेंट। यही कंडीशन थी इस सेट की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको मैं c से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कैपिटल C से, सो दैट मीन्स u Belongs plus to- v belongs to c। सिमिलरली अल्फा u आल्सो, क्यों अल्फा u में क्या आएगा, √2 अल्फा टाइम्स आ जाएगा। सो दिस इज अ
वेक्टर स्पेस, ये आपका सब स्पेस है। ठीक, क्लियर है ना यहाँ पे? चलो डी के Yes, sir. बताइए, व्हाट अबाउट डी? डी में दिया x3 बिलोंग्स टू z, x3 हमेशा इंटीजर होगा। बहुत जी आसान सर। है। सब स्पेस है या नहीं है? सब स्पेस नहीं होगा सर। वाई? नहीं होगा सर, सर इंटीजर। अगर किस कंडीशन से स्टार्ट करेंगे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर अल्फा rational यू number- डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर इसे मैं डी कहूं, डी व्हेन अल्फा इज एनी रैशनल नंबर, पी बाई क्यू टाइप है ना। तो क्या होगा उसमें x3, Yes. जैसे मैं 1/2 ले लूंगा तो इसमें डी को बिलोंग नहीं करेगा सर। सिंपल था ये तो। खैर ई के बारे में बताइए। ई ऐसा सेट है where sum of squares of first second third always less than equal to 1। तो सबसे पहले तो ये देखो इस कंडीशन को आइडेंटिटी होल्ड करती है कि नहीं। अगर तीनों 0 0 0 ले Yes, sir. लूंगा, होल्ड हो रही है ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता तो ये सब स्पेस नहीं होता, क्योंकि तीनों 0 लेंगे तो 0 तो 1 से बड़ा नहीं आएगा, है ना। तो आइडेंटिटी तो इसके अंदर है हमारी, यानी कि हमें आगे चेक करना पड़ेगा। डिस्कार्ड करने के लिए हम आइडेंटिटी का यूज आसानी से कर लेते हैं, जैसे यहाँ करते हैं। तो ये तो अंडरस्टूड है कि 0 स्क्वायर 0 0 प्लस 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, यानी कि आइडेंटिटी तो इस सेट के अंदर है। अगर इसे मैं ई से रिप्रेजेंट करूंगा, तो अगर आइडेंटिटी है तो आई हैव टू मूव फर्दर, आई हैव टू चेक व्हाट अबाउट सम। अब सम हमने भी देखो ये निकाला था, u प्लस वी, है ना। अब इसमें क्या होना चाहिए कि अगर करेगा तो इसका स्क्वायर, इसी में ही सॉल्व कर देता हूँ मैं इसे। u प्लस वी तो लिखा रहने दो, या कोई और तरीके से अगर डिस्कार्ड हो रहा देखिए। मुझे तो लग रहा है कि ई आपका होना चाहिए, या नहीं होगा शायद। अल्फा देखते हैं। बताइए, अगर मैं u प्लस वी करूंगा तो ये आ गया। क्या अब इसका सम अब भी लेस देन इक्वल टू 1 ही रहेगा? अच्छा स्क्वायर है, यस सर, स्क्वायर का सर। नो सर, अगर अल्फा से नहीं मल्टीप्लाई रहेगा ना। करेंगे। अरे यही ले लो नो आप, सर, ये u नहीं प्लस रहेगा जो सर। ऊपर लिए थे, देखो u में ले रहा हूँ 1 0 0 एंड v इज 0 1 0, ये ले लो। अब यहाँ पे क्या है, इसका सम करेंगे तो 1, सर ये इसका 2 सम 1, आएगा। और u प्लस वी हमने क्या निकाला था, 1 1 0। 0 अब इसका सम करेंगे आप, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 0, ये कितना है 2। नहीं रहेगा सर। तो टू नॉट लेस सर। देन 1 है ना, तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं इजीली। मैंने एग्जांपल लिया, कुछ भी ले सकते थे। तो इसका मतलब नॉट अ सब स्पेस है ना, आइडेंटिटी है लेकिन ये कंडीशन डिस्कार्ड हो गई। तो डिस्कार्ड के लिए यू कैन टेक एनी। चलो एफ की बात करते हैं, व्हाट अबाउट एफ? एफ में कह रहे हैं सम शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ग्रेटर और इक्वल टू 0, आइडेंटिटी तो होगी। आइडेंटिटी तो होगी क्योंकि क्वालिटी लगी, अगर स्ट्रिक्ट होता तो ही डिस्कार्ड हो जाता। अब आपको देखना है क्या ऐसा कोई पेयर पॉसिबल है, ऐसा कोई पेयर जिसमें सम आपका नेगेटिव आ जाए। अगर नेगेटिव आ गया तो फेल हो जाएगी। सोचो, सर अल्फा नेगेटिव लेते अल्फा नेगेटिव ले लें, सही बात बिल्कुल। भाई आप सब पॉजिटिव ले लो, अल्फा नेगेटिव ले लो, जैसे यही था। तो इसका सम कितना है, 1 है, 1 1 है ना। लेकिन अगर मैं ये u है, जैसे अगर खाली u लिया तो सम कितना है 1 प्लस 0 प्लस 0, लेकिन मैंने अल्फा ले लिया -1, क्या आ जाएगा अभी ये -1 प्लस 0 प्लस 0, तो लेस देन हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा u डज नॉट बिलोंग्स टू f, डिस्कार्ड हो गया ये, है ना। तो इट इज यस सर। नॉट अ सब स्पेस। चलो इसके बारे में कह रहा है, देखो इसमें एंड और है। एंड और का मतलब क्या हुआ, अगर एंड लगा हुआ है तो इसका मतलब कि दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। और में होता है कोई एक भी हो जाए। यस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास दो वेक्टर हो, वो ऐसे हो कि ये एक साथ होल्ड हो रहा हो। बताइए, तो अगर मैं u ले लूं, मान लीजिए क्या ले लूं भाई, इसमें 0 तो आ रहा है, क्योंकि अगर मैं x2 0 यस सर। लूंगा तो x1 0 x3 0, है ना। अब आग अगर इसमें यस u सर। प्लस v करेंगे, चलिए यही कर लेते हैं इसे भी करके देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एंड वाले में
हमें ये करना है कि दोनों होने चाहिए। चलो, तो अब मैंने अगर u प्लस बी किया तो ये हुआ। अब हमें ये देखना है कि x1 यानी कि फर्स्ट शुड इक्वल टू √2 सेकेंड। तो अगर मैं x1 प्लस y1 लूँ तो x1 कितना होता है यहाँ पर, √2 x2 था इस, है ना, u कहाँ था इसमें, तो x1 था √2 x2। यहाँ पर अगर मैं कंडीशन लिखूंगा अब, तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये एक साथ होल्ड हो रही है। तो यहाँ पर यू हैव x1 इज इक्वल टू √2 x2 एंड x3 इज इक्वल टू 3 वही y1 के लिए। तो x1 कितना है, √2 x2 और y1 कितना होगा, √2 y2। तो ये तो आपका √2 टाइम्स x2 प्लस y2, यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन तो होल्ड हो रही है। एंड साथ में x3 शुड इक्वल टू 3x2। तो थर्ड कोऑर्डिनेट यानी कि x3 प्लस y3, है ना, दिस शुड इक्वल टू 3 टाइम्स x3 कितना होगा यहाँ पर 3x2 प्लस y3 विल बी 3y2। तो 3 टाइम्स, तो ये दोनों ये तो होल्ड हो रही है इसमें, है ना, है ना, ये दोनों भी एंड है तो ये और ये एक साथ होल्ड होगी। और अल्फा यू की अगर हम बात करें तो अल्फा यू भी होल्ड हो, क्योंकि अगर किसी एलिमेंट का ये है तो अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा ना। यस तो ये आपका क्या है, सब स्पेस है। और वाले में देखिए, और वाले में क्या है कि कोई एक होल्ड हो, तो हम ऐसा सेट बना सकते हैं। देखिए क्या, एक यू में ऐसा लूंगा जिसमें फर्स्ट होल्ड हो रही हो, सेकंड यू ऐसा ले लूंगा, बी ऐसा ले लूंगा जिसमें ये हो रही हो। तो सम हम बनाएंगे तो सम जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक होल्ड करे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक साथ होल्ड होना था इसलिए इट वाज होल्डिंग। यहाँ पर कंडीशन है कोई एक अगर होल्ड होगी तो सेट में आ जाएगा। जैसे मैंने एक यू एग्जाम्पल इस वाले के लिए, आई एम टेकिंग यू इज सपोज 215। तो इसमें क्या है, x1 इज इक्वल टू ट्वाइस x2, है ना। तो ये कहाँ जा रहा है, ये h में जा रहा है। अगर ये h है, अगर एक भी होल्ड हुई तो सेट में जाएगा। सेकंड मैंने ले लिया सेकंड कंडीशन वाला, तो आई एम टेकिंग b इज इक्वल टू xt शुड बी 3x2। तो x1 तो कुछ भी ले लो और ये ले लो आप क्या 1 and 3। अब ठीक है, देखिए x3 कितना है, x2 का थ्राइस, तो ये भी h में है। अब u प्लस b कितना आएगा जरा देखना, 9 2 8। अब ये देखो क्या, कोई भी अगर एक होल्ड हो रही होगी तो s में जाएगा। अब यहाँ पर x1 क्या है, x1 इज नॉट इक्वल टू 2x2, देखो है ना, 9 इज नॉट इक्वल टू 2x2। और थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या थी, x3 शुड इक्वल टू 3x2। तो x3 8 है, 3 इसका 6 है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 इज नॉट इक्वल टू 2x2 मीन्स 4 एंड x3 इज नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या हुआ, u प्लस v does not belongs to H, so it is not a subspace। बात समझ में आ रही है ना। यस सर। क्योंकि और था यहाँ पर, तो और में क्या हुआ कि हमने ऐसा एलिमेंट चूज किए कि एक एलिमेंट तो सेटिस्फाई कर रहा हो फर्स्ट कंडीशन, दूसरा कर रहा हो सेकंड कंडीशन, तो उसका सम दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई करे, इट इज नॉट नेसेसरी, हमने डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन अगर एंड होता है तो करेगा, क्योंकि एंड में आपने पास ऐसा एलिमेंट लिया है u जो दोनों को होल्ड कर रहा है, तो दोनों को होल्ड करने वाला एलिमेंट अगर होगा तो उसका सम भी करेगा। आई आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आई इसी की तरह है, जब इक्वालिटी होती है ना तो आई आपके पास क्या है, देखिए सेम है, x1 x2 x3 को मैं 0 ले सकता हूँ, और कोई आप एलिमेंट जब लेंगे तो इसे होल्ड करेगा, तो आई भी आपका वेक्टर स्पेस आएगा। ठीक है, इस टाइप की इक्वालिटी है ये। यहाँ कोई कांस्टेंट अगर ऐड होता +1 या +2 तो होल्ड नहीं होता, क्योंकि फिर आइडेंटिटी मिसिंग हो जाती है। अभी मैं आइडेंटिटी ले सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इक्वालिटी में आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ चेक किया था कि इक्वालिटी वाले केस में सब स्पेस आ जाता है प्रोवाइडेड 0 एग्जिस्टिंग। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस थिंग। तो ये आपका एक वेक्टर सब स्पेस की सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है भाई, मजा आया नहीं आया करने में। यस सर। हाँ, Yes, sir. ऐसी प्रॉब्लम्स आपके कंपटीशन में बहुत आती है, खासकर जो मैथ्स वाले टेस्ट होते हैं जैम वगैरह, उसमें लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चंस खूब आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं। 4 सेट दे देंगे आपको, पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस।
आप लोगों का भी तो जैम होता होगा फिजिक्स वालों का, उसमें भी शायद आता है लीनियर अलजेब्रा। यस सर होता है। यस सर, फाइनल दिन पढ़ाते हैं हाँ अलग पेपर। ठीक है, चलिए। इसमें यही प्रॉब्लम थी आपकी, वैसे इसमें हर प्रॉब्लम सेट में इसमें आपकी बुक में कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अलजेब्रा अच्छी करने में तो वो ट्रू फॉल्स आप करिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, कुछ ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। ओके सर। जी चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल है, जैसे एक ट्रू फॉल्स दे रखा है, ये भी मैंने का पढ़ी। V2 इज अ सब स्पेस ऑफ V3। क्या V2 V3 का सब स्पेस है? एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है ये, बताइए। V2 इज अ सब स्पेस ऑफ V3, इज इट ट्रू? Yes, sir. कह सकते हैं हम V2 में हाँ सर। थर्ड पेयर होगा? क्यों भाई? ये वो V2 क्या होगा? R2 है और V3 R3। एक्चुअली V2 क्या होगा अगर आप V3 बनाए, दिस इज योर V3 ना, V2 इज R2 X है। Y Z। अब V2 क्या होता है? V2 बेसिकली होता है Fine. एक्स वाई, such that एक्स वाई बिलोंग्स टू R, है ना? Yes sir. तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ? कैन आई राइट इट एक्स वाई 0 है, ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, Yes sir. यस सर। ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि V2 के एक्स वाई प्लेन है, तो इसके अंदर एक्स वाई प्लेन तो आपका होता है, ये है एक्स वाई प्लेन, Yes sir. है ना? और अब अगर बात करें वेक्टर स्पेस की, तो बताइए, 0 तो होगा इसके अंदर, Yes है sir. ना, क्योंकि ओरिजिन होता है आपके पास V2 में। अब V2 तो हमें मालूम ही है, V2 आपका वेक्टर स्पेस है हमेशा, है ना? Yes sir. V2 में आपके पास सारे एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू R है। बस ये होता है कि हमने उसका प्रोजेक्शन नीचे ले लिया एक्स वाई प्लेन पे। तो इसे मैं कह सकता हूँ ना, सबसेट कह सकते हैं इसे हम। ये ऐसे हो गया जैसे मैंने लाइन की बात करी थी कि R2 में लाइन, तो R2 क्या था आएगा आपका, R2 में लाइन थी जैसे एक, है ना? तो पूरे R2 में R2 तो आपका मतलब V2 था, और जो लाइन है बेसिकली क्या होती है लाइन? लाइन तो आपका एक V1 ही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन थी, लेकिन V1 तो नहीं कहेंगे उसे, लेकिन वो पासिंग थ्रू ओरिजिन था तो एक रियल लाइन ही बनेगी ये 0 से पास होती हुई। क्यों? V1 क्या है आपका, Yes, sir. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सब V1 ही है। क्या ये लाइंस हैं, इसमें सारे पॉइंट्स हैं, 0 भी है, सारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, तो ये भी तो एक वही लाइन है। इट हैज 0, Yes. इट हैज पॉजिटिव नंबर्स, इट हैज नेगेटिव नंबर्स। तो इस टाइप के कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आपके इसमें गिवन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। तो 3.3 नेक्स्ट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पैन ऑफ अ सेट, स्पैन ऑफ अ सेट, स्पैनिंग सेट। फिजिक्स में पढ़ा कभी अभी तक आपने? नहीं, स्पैनिंग, जी सर। स्पैनिंग No, पढ़ी sir. है? नहीं पढ़ा, चलिए। किसी No सेट का sir. स्पैन सेट, उससे पहले हम एक और चीज डिफाइन करेंगे। 3.3.1 है आपकी बुक में मैं इसलिए लिख देता हूँ कि उसमें थोड़ा और डिटेल में लिखा होता है, अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। ये क्या होता है? सपोज यू हैव n वेक्टर्स, लेट u1 u2, नाउ यू अंडरस्टूड कि u1 u2 v1 v2, इससे मैं वेक्टर्स रिप्रेजेंट करूंगा अल्फा बीटा गामा से स्केलर्स। लेट u1 u2 un बी द n वेक्टर्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, ये किसी भी वेक्टर स्पेस V के n वेक्टर्स हैं। लेट B द n वेक्टर्स
स्मॉल n वेक्टर्स ऑफ एनी वेक्टर स्पेस V, है ना। अब V आपका V1 V2 जो भी होगा U1 उस हिसाब से हो जाएंगे। अगर V2 होगा तो ये आपका 1,0 या A,B हो सकता है। हमने जनरल लिया है, ठीक है। और जितने हमने वेक्टर लिए उतने स्केलर ले लिए, α1 α2 αn, दे आर सम रियल नंबर्स। देन अब अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं α1 U1 प्लस α2 U2 एंड सो ऑन αn UN, ऐसे अगर हम लिख दें, इसे हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। लीनियर है या कोई किसी की पावर 2 डिग्री कुछ नहीं है, प्रोडक्ट नहीं, बस सिंपल कॉम्बिनेशन कर दिया। दिस इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 UN, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 वेक्टर्स होते, सपोज U1 इज सम कॉमा A कॉमा B एंड U2, अगर ये R2 के होते सम C कॉमा D, तो क्या हो जाएगा, सपोज 2U1 प्लस 3U2, ये क्या है, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। पर्टिकुलरली मैंने कहा है ना, क्योंकि अल्फा तो कुछ भी हो सकता है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं इसे सेट की फॉर्म में लिखूं, है ना, अगर मैं U1 U2 को एक सेट बना दूं, मान लो U1 U2 UN, इसे मैंने एक सेट की फॉर्म में रख दिया, अगर ऐसा है तो हम ये भी कहते हैं कि इट इज आल्सो कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड